Assalamu alaikum. My name is Mehwish Javed. I am assistant professor in zoology from Government Girls Degree College, Sangar, with the support and guidance of Education and Literacy Department of Government of Sindh. Today I will start lecture number 2 of chapter number 10 from textbook of biology for first year science students. In this chapter, we will be talking about phylum Porifera. This is the first phylum of kingdom Animalia. Here we will start from a brief introduction, then journal characteristics and classification of poriferans. So first of all, what is the meaning of porifera? Porifera is the combination of two Latin words. Porus means pores and fera means to bear. It means spore-bearing animals. And these are commonly called sponges. How can we define a sponge? A sponge is a primitive, sedentary, aquatic invertebrate with a soft porous body. Let us see here in this diagram that show the complete sponge body. It is a cycone. Their body is covered with the very minute pores. These pores are called ostia, and one large opening is called osculum. These pores are connected with a network of canals through which water flows. Inside this, there is a hollow cavity present. This cavity is called spongiocele. So Robert Grant given the name Porifera in 1836. There are about 5,000 species that show many colors, shapes, and sizes. They are most primitive multicellular organisms that show cellular level of organization. It means that each cell performs its specific function. So it is kept in two separate kingdom Parazoa. Phylum Porifera किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम है। विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोन्स थे उनको हमने किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में अरेंज किया था और इस तरह से जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स थे उनको किंगडम एनिमेलिया में अरेंज किया था। इसलिए ये किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम है और इसमें तमाम एनिमल्स में एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर मल्टी सेलुलरिटी का क्लियर नज़र आता है हमें, लेकिन सिर्फ एनिमल बॉडी जो है वो कुछ सेल्स से मिलकर बनी हुई है, जिसकी वजह से इसमें टिश्यू और ऑर्गन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए इसको हम सब किंगडम पैराजोआ में अरेंज करते हैं। तकरीबन 5000 के करीब स्पीशीज हैं जो हमें डिफरेंट शेप्स में साइजेस में नजर आती हैं, डिफरेंट कलर्स की नजर आती हैं। दे ग्रो लाइक अ प्लांट की तरह की ग्रोइंग एनिमल्स की। मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पोर्स से कवर्ड है। कॉमनली हम इसको स्पंजेस कहते हैं। पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। इन पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं और इसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ये पोर्स कनेक्टेड है कैनाल्स के थ्रू जिसमें वाटर फ्लो होता है। एनिमल बॉडी के अंदर एक कैविटी है, हॉलो कैविटी, जिसको हम स्पंजोसील कहते हैं। Now we are going to discuss in detail journal characteristics of poriferans. Journal characteristics of phylum Porifera. Number 1. Habit and habitat. All sponges are aquatic, mostly marine. Few live in fresh water. For example, Spongilla. They are sessile and filter feeders. Filter feeder means a microphagous aquatic organisms that has filtering mechanism that catching food particle found in the water. जर्नल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले जब हम बात करते हैं हैबिट और हैबिटेट की, तो जितने भी स्पंजेस हैं वो ज़्यादातर मरीन वाटर में रहने वाले हैं। सिर्फ कुछ स्पीशीज हैं जो फ्रेश वाटर में होती हैं जैसे स्पॉन्जिला, और ये तमाम सजाइल होते हैं। सजाइल मतलब कि जो सी वाटर में किसी सबस्ट्रेटम से, फॉर एग्जांपल रॉक्स वगैरह के साथ या शेल्स के साथ फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते। जितने भी एडल्ट पोरिफेरन्स हैं वो तमाम सजाइल हैं, जबकि इनमें जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती हैं। एंड दे आर फिल्टर फीडर्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें वाटर करंट के थ्रू फूड पार्टिकल्स एंटर होता है, तो उनकी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं कोनोसाइट सेल्स की तरह के,
या कॉलर सेल्स की तरह के, जो उसको उन पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं. So these conocytes generate water current and filter food particles from the water. Second point is about cellular organization. They have cellular level of organization with no tissue and organs. Because there are multiple cells are present here, so each cell is performing its individual function, and these cells do not combine to form tissues. एनिमल का जो बॉडी है, बेसिकली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल पर है बना हुआ, इसलिए उसमें टिश्यू या ऑर्गन्स जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से सिस्टम्स भी वेल डेवलप नहीं है. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट बॉडी सिमेट्री. दे आर asymmetrical or radially symmetrical because they are highly branched, vase-like or cylindrical. So they are asymmetrical animals. एनिमल बॉडी की डिफरेंट शेप्स हैं, वॉज लाइक भी होंगे, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी होंगे. तो अगर हम उनको किसी भी एक्सिस से डिवाइड करना चाहें तो वो इक्वल हाफ नहीं हो सकते, इसलिए ये तमाम एनिमल्स एसिमेट्रिकल होते हैं. सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल स्पीशीज हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल फॉर्म में नजर आती हैं. द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट बॉडी वॉल. इट इज मेड अप ऑफ 2 layers, पिनेकोडर्म एंड कोनोडर्म. Pinacoderm is the outer layer and is made up of pinacocyte cells, and conoderm is the inner layer and is made up of conocyte cells. Between these 2 layers, a gelatinous mesenchyme is present. बेसिकली जो एनिमल की बॉडी वॉल है वो 2 लेयर सेल्स से मिलकर बनती है. आउटर लेयर जिसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं, जो पिनेकोसाइट सेल से मिलकर बनती है, और इनर लेयर जिसको हम कोनोडर्म कहते हैं, जो कोनोसाइट सेल से मिलकर बनती है. इन दोनों लेयर्स के दरमियान जेली लाइक मटेरियल होता है सेंटर में, जिसको हम मेसेनकाइम कहते हैं. मेसेनकाइम में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं सेल टाइप्स में. द फिफ्थ इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ फाइलम पोरिफेरा इज द सेल टाइप्स. Their body is made up of different types of cells: pinacocytes, porocytes, conocytes, and amoebocytes. And these cells perform different functions. Cell types in Porifera. You are looking at different types of cells and how these cells play important role. So, number 1, pinacocytes. These are flattened cells, form outer epidermal layer of the body. यहाँ हम जितने सेल्स को देख रहे हैं कि वो किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सबसे पहले पिनेकोसाइट सेल्स की बात करते हैं. पिनेकोसाइट सेल्स जो कि फ्लैटेंड सेल्स हैं, ये आउटर लेयर की फॉर्मेशन में, आउटर एपिडर्मल लेयर की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनके अंदर कुछ ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं पोरोसाइट्स. द नेक्स्ट टाइप इज पोरोसाइट. इट क्रिएट पोर that connect the inside and outside of the sponge, regulate water circulation. पोरोसाइट सेल्स का काम ये है कि ये पोर्स को डेवलप करता है, क्रिएट करता है, और ये वाटर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो वाटर करंट जो ऑस्टिया से बॉडी के अंदर एंटर होता है, ये उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. थर्ड पे हम देखते हैं कॉनोसाइट सेल्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Conocyte cells are also called collar cells. These are flagellated cells. It acts as pump to bring water into the sponge. स्पंजोसील कैविटी के अंदर कोनोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं जिन पर फ्लैजेला होता है. फ्लैजेला की कंटिन्यूस बीटिंग से या मूवमेंट से ये सेल्स एनिमल बॉडी के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो कोनोसाइट सेल्स का काम क्या हो गया? वाटर ट्रांसपोर्टेशन का. नेक्स्ट हम देखते हैं मेबोसाइट सेल्स किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनिमल बॉडी में. दीज आर इरेगुलर सेल्स. इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन. मेसेनकाइम में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं
अमेबाइट सेल्स। और ये सेल्स जो होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे होते हैं और ये मीसोहाइल में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये सेल्स तक न्यूट्रिशन डिलीवर करते हैं और रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिए तमाम सेल टाइप्स किस तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। So the next most important characteristic feature of waterfront or canal system. The most important or distinctive characteristic feature of phylum Porifera is the water transport or canal system. डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकी फाइलम्स में नहीं होते, जैसे सेल टाइप्स हैं, पिनेकोसाइट्स है, पोरोसाइट्स है, कैनाल सिस्टम है, स्पिक्यूल्स हैं। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिर्फ स्पंजेस में होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ सबसे पहले हम कैनाल सिस्टम को डिफाइन करते हैं। A system of interconnected canals of different types present inside the sponge body is called canal system. There are different types of canal system: Oscan type, Cyclone type, and Leucan type. This system consists of minute pores called ostia, a large opening osculum, and a central cavity spongiocele through which water circulates during filter feeding. Canal system helpful in gas exchange, gathering of food particles, removal of the waste, and also bring a sperm for another sponge for reproduction. You are looking here in this diagram that show the water transport or canal system in sponges. The course of water shows water enters through minute pores into the central cavity spongiocele and goes out through mouth-like opening called osculum. यहाँ पर हम कनाल सिस्टम में देखते हैं कि कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पंजेस में। तो स्पंज बॉडी वॉल में कनाल्स का एक नेटवर्क होता है जिसको हम कनाल सिस्टम कहते हैं, जिसके जरिए बॉडी में वाटर एंटर होता है और डिफरेंट वेज से बाहर की तरफ पास आउट हो जाता है। क्योंकि टू ओपनिंग्स हैं, ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम, तो ये कनाल सिस्टम डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में और रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर करंट जब बॉडी में एंटर होता है पोर्स के थ्रू, तो वाटर के साथ कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन है या फूड पार्टिकल्स है एंटर होते हैं स्पंजोसील कैविटी में। स्पंजोसील कैविटी में कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो उन पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करते हैं और बॉडी सेल्स तक लेकर जाते हैं। तो इस तरह से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्पंजोसील के थ्रू ही ऑस्क्यूलम से बाहर की तरफ पास आउट हो जाती हैं। तो इस तरह से ये कैनाल सिस्टम स्पंज बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम एक और डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं जिसको हम कहेंगे स्पिक्यूल्स और स्केलेटन। Another unique characteristic feature of phylum Porifera is the skeleton. The sponge body is supported by an skeleton. It has two main types. Number one is spicules, number two is pungent fibers. Spicules which act as internal skeleton. These are spines-like and consist of calcareous and siliceous. Calcareous spicules are made up of calcium carbonate, while siliceous spicules are made up of silica. Second type is pungent fibers or skeletal fibers. These are made up of fibrous proteins. जिस तरह बाकी तमाम एनिमल्स में स्केलेटन होता है डिफरेंट टाइप्स का, जो उनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, इस तरह से स्पंज बॉडी में भी स्केलेटन होता है डिफरेंट टाइप का, जो स्पिक्यूल्स की फॉर्म में होता है या स्पंजन फाइबर्स की फॉर्म में होता है। तो स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटरनल स्केलेटन के तौर पे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये स्पाइन की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं या नीडल लाइक होते हैं, कैल्केरियस फॉर्म में भी होते हैं ये और सिलिशियस फॉर्म में भी होते हैं। कैल्केरियस स्पिक्यूल्स जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनते हैं, जबकि सिलिशियस जो होते हैं वो सिलिका से मिलकर बनते हैं। इस तरह जो सेकंड टाइप है स्पंजन फाइबर्स या स्केलेटल फाइबर्स, ये फिब्रस प्रोटीन से मिलकर बनती है। ये नेटवर्क की फॉर्म्स के तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये दो तरह का स्केलेटन स्पंज बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है।
इसके बाद हम देखते हैं स्पंजेस के सिस्टम्स के बारे में कि किस तरह से उसकी बॉडी के अंदर सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पंज बॉडी में टिश्यू और ऑर्गन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से उनके सिस्टम्स उनके अंदर इतने वेल डेवलप नहीं है। तो इसलिए डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन या रिप्रोडक्शन के जितने प्रोसेसेस भी हो रहे हैं उनकी बॉडी में, वाटर कंटेंट के थ्रू रेगुलेट हो रहे हैं। सो डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर and takes place inside the food vacuole. Respiration and excretion occur through by diffusion. They do not have nerve cells to coordinate body functions because nervous system is not well developed. उसके बाद हम देखते हैं reproduction. They are mostly hermaphrodite or bisexual. That means one sponge has both organs, male and female. Hermaphrodite मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं या बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो इस तरह से जो स्पंजेस होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के प्रोसेस से होती है स्पंजेस में। इट टेक्स प्लेस बाय रीजनरेशन और जिम्यूल फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमीट फॉर्मेशन। तो रीजनरेशन मतलब कि sponges can regenerate from broken pieces or regrowing of missing parts is called regeneration. एनिमल बॉडी का अगर कोई पार्ट ब्रोकन हो जाता है, मिस हो जाता है, किसी वजह से लॉस हो जाता है, तो उसी जगह से वो दोबारा ग्रो होने की एबिलिटी रखता है। सो स्पंजेस हैव अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, व्हिच इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction. Second one is gemule formation. Gemule is basically an internal bud found in a sponge and are involved in a asexual reproduction or a mass of cells that is capable of developing into new organism is called gemule. एनिमल बॉडी के इंटरनल साइड से एक बड अपीयर होती है, बड की तरह का स्ट्रक्चर अपीयर होता है जो न्यू स्पंज को डेवलप करता है, इसको जेम्यूल कहते हैं। अब बड एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, लेकिन जो इंटरनल बड होती है बेसिकली उसको जेम्यूल कहा गया है। Sexual reproduction takes place by the help of gamete formation. उसके बाद हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होती है स्पंजेस में इंटरनल होती है। मेल और फीमेल गैमीट्स बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसी तरह डेवलपमेंट जो होती है इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व सेक्सुअली इमेच्योर लार्वल स्टेज, ऐसा प्रोसेस डेवलपमेंट का जिसमें लार्वल स्टेज डेवलप हो रही है, फर्टिलाइज्ड एग के बाद डेवलप हो रही है फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, जिसको हम कहते हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, जो कि स्पंजेस में कॉमन है। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि स्पंज बॉडी में किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंजेस according to their skeletal material. Sponges are divided into three main classes. Number 1 Calcarea, number 2 Hexactinellida, number 3 Demospongia. तो सबसे पहले हम कैल्केरिया क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो एनिमल्स का स्केलेटन होता है वो नीडल शेप का होता है, कैल्केरियस फॉर्म में होता है। स्पिक्यूल्स जो होते हैं कैल्केरियस फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोन, साइकोन के एनिमल्स में स्केलेटन जो होगा ये स्पिक्यूल्स की फॉर्म में होगा, लेकिन स्पिक्यूल्स जो होंगे वो कैल्केरियस फॉर्म में होंगे। सेकंड है हेक्साक्टिनेलिडा, स्पिक्यूल्स सिलिशियस, फॉर एग्जांपल यूप्लेक्टिला। क्लास हेक्साक्टिनेलिडा के जो एनिमल्स हैं जैसे यूप्लेक्टिला है, इनमें स्केलेटन जो होता है वो स्पिक्यूल्स की फॉर्म में होता है, लेकिन स्पिक्यूल्स जो है वो सिलिशियस फॉर्म में है, सिलिका से बने हुए हैं। थर्ड क्लास है डेमोस्पोंजिया, skeleton of proteinaceous fibers, for example spongilla. डेमोस्पोंजिया क्लास में एनिमल्स का जो स्केलेटन है वो स्पंजल फाइबर्स और प्रोटीनेशियस फाइबर्स से मिलकर बना हुआ है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है स्पॉन्जिला की। ये थी क्लासिफिकेशन फाइलम पोरिफेरा से रिलेटेड कि इसको हम कितनी क्लासेस में किन बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। साइकोन, यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला एंड यूस्पोंजिया, these are the examples of phylum Porifera. Here we revise key points of phylum Porifera. They are pore-bearing animals.
They are commonly called sponges. There are about 5,000 species. They grow like plants. They are aquatic organisms. They are asymmetrical or radially symmetrical. They have cellular level of organization with no tissue and organs. They have two-layer body wall, pinacoderm and choanoderm. Presence of canal system is well developed, which helps in respiration, digestion, excretion, and reproduction. They reproduce asexually and sexually, asexually by regeneration or gene formation, and sexually by gamete formation. Fertilization is internal, development is indirect. So I hope you understand about general characteristics of phylum Porifera. Next inshallah we will start phylum Coelenterata. Thank you for watching this video.